اسلام لیگ ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، زیڈ بھٹو کے بعد عمران خان ایک ایسا پاکستان کی تاریخ میں لیڈر ہے جو بیانیے کو بنانے اور اس کو اٹھانے اور اس کے ٹیمپو کو آگے لے جانے کا ماہر ہے۔ اگر پچھلے الیکشن کی آپ بات کر لیں یا پی ٹی آئی کی جب سے ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کے اب تک کی بات کر لیں تو بہت سے واقعات ایسے ہیں جب عمران خان نے سیاسی حوالے سے بہت سے بیانیے دیے، بہت سے دعوے کیے، بہت سی ایسے سلوگنز دیے جس کو لے کر وہ آگے بڑھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سلوگن عام آدمی کی اور عام لوگوں کی زبان بن گیا۔ 18 کے الیکشن میں انہوں نے مقبول 2-3 نعرے دیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ احتساب کریں گے، سب کا احتساب کریں گے۔ احتساب کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا 2 نہیں 1 پاکستان بنے گا، بہت ہو گئی، اب نظام کو ٹھیک کیا جائے گا۔ احتساب کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ گھر دیں گے، پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں لوگوں کو دی جائیں گی۔ اس طرح بہت سے انہوں نے دعوے کیے، بہت بڑی بڑی باتیں کی۔ بھٹو اور عمران خان میں فرق یہ نکلا کہ بھٹو صاحب کے پاس ایک ایگزیکیوشن کے لیے زبردست ٹیم تھی، لیکن عمران خان کے پاس اس طرح کی مخلص، سنسیئر اور تجربہ کا ٹیم نہیں تھی۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ عمران خان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو اس حوالے سے کہا کہ خان صاحب آپ سلوگن تو دے رہے ہیں کہ اسٹیٹس کو آپ بریک کریں گے، آپ سلوگن تو دے رہے ہیں کہ آپ 2 نہیں 1 پاکستان بنائیں گے، لیکن یہ روایتی ٹیم کے ساتھ، یہ روایتی لوگوں کے ساتھ، روایتی سیاستدانوں کے ساتھ، ان لوٹوں کے ساتھ آپ یہ کیسے کر سکیں گے؟ میں نے ایک ان کے سامنے مثال بھی رکھی۔ میں نے کہا کہ ریچھ اور مگرمچھ میں اگر لڑائی ہو تو خان صاحب کون جیتے گا؟ وہ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ بتاؤ کون جیتے گا؟ تو میں نے کہا بڑی سمپل بات ہے کہ جس پچ کے اوپر جہاں لڑائی ہوتی ہے وہ بیسیکلی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ شکست کس کی ہوگی اور فتح کس کو ملے گی۔ اگر پانی کے اندر لڑائی ہوگی تو مگرمچھ جیت جائے گا، خشکی کے اوپر ہوگی تو ریچھ جیت جائے گا۔ بڑی سمپل بات ہے۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ پھر مزید میں نے کہا جی مطلب اس کا یہ ہے کہ جو آپ کی اسٹرینگتھ ہوتی ہے، وہ آپ کا وہ جگہ، وہ ایریا، وہ بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کھڑے ہو کر بنیادی طور پہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو ٹریپ کر کے روایتی سیاستدان اپنی پچ کے اوپر لے گئے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ آپ مگرمچھ کو پکڑنا چاہ رہے ہیں اور مگرمچھ کے گھر میں جا کے پانی کے اندر اتر کے اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، اور ایسا ہوگا نہیں۔ وہ مگرمچھ وہاں پہ رہ رہا ہے ایک عرصے سے، وہ اس کی گہرائی کو بھی جانتا ہے، اس کی ڈیپتھ کو سمجھتا ہے، وہ اپنی اسٹرینتھ کو سمجھتا ہے۔ وہاں پہ جا کے آپ اس کو ناکام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیس کے اوپر کھڑے ہو کر اس تبدیلی کی آپ لڑائی لڑیں۔ نتیجہ وہی نکلا کہ 2 نہیں 1 پاکستان کا سلوگن، تبدیلی کا سلوگن، اینٹی اسٹیٹس کو کا سلوگن، کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر۔ تو خیر یہ سارا کچھ نہ ہو سکا، لیکن وہ اسٹیٹس کو کے لوگ جو تھے، جو ساتھ ان کے جوڑے گئے یا انہوں نے خود جوڑ لیے، وہ تمام کے تمام لوگ ایک ایک کر کے تتر بتر ہوتے چلے گئے۔ جب امتحان کا وقت آیا تو کوئی ساتھ کھڑا نہیں تھا، چند ساتھی تھے جو پرانے اپنے لوگ تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سلوگنز تو پورے نہ ہوئے لیکن ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اب ایک بار پھر عمران خان نے ایک نیا بیانیہ دیا ہے، اور بڑا خوفناک بیانیہ اس بار دیا ہے، اور وہ خوفناک بیانیہ کو کامیابی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اقتدار کے اندر اتنے پاپولر نہیں تھے، 2018 کے اندر اتنے پاپولر نہیں تھے۔ پیچھے ماضی میں اگر چلے جائیں تو پچھلے تمام ٹینیور کے اندر جب سے انہوں نے پارٹی بنائی اتنے پاپولر نہیں تھے جتنے آج وہ اپنے بیانیہ کی وجہ سے پاپولر ہے۔ اور تازہ ترین بیانیہ کیا ہے؟ تازہ ترین بیانیہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت مسلط کر دی گئی ہے، اور ان کی حکومت کو امریکی مداخلت اور امریکی سازش کے نتیجے میں ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کی ایویڈنس بھی وہ پیش کر رہے ہیں قوم کے سامنے، قوم اس کو ایکسیپٹ بھی کر چکی ہے، عام آدمی اس کو ایکسیپٹ کر چکا ہے۔ اس کے باوجود کہ 13-14 پارٹیز جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہیں، وہ ساری کی ساری اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ادارے بھی کسی نہ کسی سطح پہ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عام آدمی اس کو بائی کر چکا ہے۔ اور یہ بیانیہ آپ گلی گلی، محلے محلے، جگہ جگہ پوری نوجوانوں کی اور عام آدمی کی آواز بن چکا ہے۔ پاکستان کے اندر 8
7 से 8 करोड़ यूथ है। वो ना तो यूथ कन्वर्ट हुई है बिलावल की तरफ नौजवान होते हुए, ना हमज़ा की तरफ, ना मरीम की तरफ। वो सारी की सारी यूथ जो है आज भी इमरान को, एक 70 साला कप्तान को फॉलो कर रही है, और वो सारी यूथ जो है उसमें अक्सरियत ऐसी है जो इमरान खान के इन नारों को फॉलो कर रही है। और इमरान खान के आज भी नारे वो खूबसूरत ख्वाब है। सियासतदान बुनियादी तौर पे ऐसे ही होता है कि वो ख्वाब दिखाता है कौम को, और उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लीडर बनकर उन ख्वाबों के अंदर हकीकत का रंग भर सकते हैं, और कुछ लोग एक सियासतदान होते हैं वो डंग टपाव का सिलसिला जारी रखते हैं और अपना वक्त गुजार के वो माजी किस्सा माजी बन जाते हैं। लेकिन इमरान खान कोशिश कर रहा है कि अपने उन ख्वाबों में हकीकत का रंग भरें। एक स्लोगन और एक बयानिया तो उन्होंने ये दिया है। दूसरा, उनके साथ ओवरसीज़ की एक बड़ी तादाद शामिल है, जो 90 लाख की उनकी तादाद है। समझ लें कि उनमें अक्सरियत ओवरसीज़ की आज भी उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान का वो तबका जो, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास वो होती है जो सोसाइटी के एक पिलर होती है, और अगर वो एलिमिनेट हो जाए तो सोसाइटी पूरी ज़मीन पे गिर जाती है। वो सारी की सारी सोसाइटी, सफ़ेद पोश वो लोग, वो तनख्वाहदार लोग, वो जो मैटर करते हैं सोसाइटी के अंदर, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो सारे के सारे लोग, उनकी अक्सरियत इमरान खान के साथ मौजूद है और उनको सपोर्ट करी। एंटी ड्रोन जो एलिमेंट्स था पाकिस्तान के अंदर, एंटी अमेरिका जो एलिमेंट्स था, वो भी सारे के सारे इमरान खान की इस काज को और उनके स्लोगन्स को और उनके बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इस्लाम फोबिया के हवाले से इमरान खान ने काम किया, और यूएनओ के अंदर एक करारदाद उन्होंने रेजोल्यूशन भिजवाई, उसके नतीजे में भी जो पाकिस्तान के अंदर राइट विंग जो मजहबी वोटर है वो भी इमरान खान की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। तो इमरान खान बेहक वक्त पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले या पाकिस्तान के बाहर बसने वाले ओवरसीज़ को, पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी तबकात हैं उनको, एंटी अमेरिका सेंटीमेंट को और एंटी ड्रोन सेंटीमेंट को, ये सारे के सारे लोगों को बेहक वक्त वो उनको समझ लें कि काबू किए हुए हैं, और वो सारे के सारे लोग इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं और इमरान खान के बयानिए को एक्सेप्ट करके उसके पीछे चल रहे हैं। वो कोई और बात सुनने को तैयार नहीं। इमरान खान 14 से 15 कामयाब जलसे करना चाहते हैं। 20 मई की एक तरह से डेडलाइन उन्होंने दे दी इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई के लिए। जो आज़ाद तजियाकार हैं उनका ख्याल है मेरे इसमें कि वो 2 लाख से कुछ ज़ायद या उसके करीब करीब लोग इस्लामाबाद तक ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद को वो इस्लामाबाद ले जाते हैं और वहाँ पर वो मॉब जो है, वो जिसके अंदर एंगर भी है, जिसके अंदर गुस्सा भी है, जो ये बिलीव भी करता है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बैरूनी साजिश के नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर एक हुकूमत मुसल्लत की गई है जो करप्ट भी है, जिनके ऊपर केसेस भी हैं वगैरह वगैरह, तो वो मॉब अगर सरकारी बिल्डिंग्स की तरफ, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ रुख करता है और वहाँ पे अगर कब्ज़े की एक सूरत हाल हो जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा? क्या पाकिस्तान के जो अदारे हैं, जो फोर्सेस हैं, वो आम आदमी पे गोली चलाएंगे? एक सवाल तो ये है। उसके बाद सिचुएशन क्या होगी? इससे पहले की सूरत हाल ये है कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इनको जूते पड़ेंगे तो ये सब ठीक हो जाएंगे। वो ये ख्याल रखते हैं या ज़हन रखते हैं कि इन लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग घरों से निकलेंगे तो उनको रोकना और फोर्सेस के ज़रिए रोकना, रियासती इदारों के ज़रिए रोकना बड़ा मुश्किल होगा। और जो हमारा ख्याल था कि पीटीआई के लोग डंडे नहीं खा सकते, बुरे वक्त को फेस नहीं कर सकते, गर्मी को नहीं फेस कर सकते, बाहर रह नहीं सकते, तो वो 126 दिन के धरने के बाद उन्होंने साबित कर दिया कि वो ये सारा कुछ कर सकते हैं। अब वो मम्मी डैडी जो क्लास है वो लड़ने और मरने और मारने को तैयार बैठी है, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर जो एंगर और गुस्सा भर दिया गया है और वो जिस कदर मौजूदा सेटअप से नाराज़ हैं और जिस तरह वो सोच रहे हैं कि उनके पाकिस्तान के ऊपर शायद किसी अमेरिकन वायसराय ने आके कब्ज़ा कर लिया है और कोई और आके इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ गया और अब ये कब्ज़ा छुड़ाना इमरान खान की क़यादत में बहुत ज़रूरी है। तो ये एक सोच लिए जब लोग घरों से निकलेंगे और इस्लामाबाद के अंदर एक अनारकी की सूरत हाल बनेगी या रास्ते में बनेगी, चलो मैं इत्तेफाक करता हूँ इस्लामाबाद तक कम लोग जाएंगे, रास्ते में
जगह जगह कश्तो खून लड़ाई की एक सूरत हाल होती है। तो पाकिस्तान की रेंजर और फ़ौज के बारे में तो यकीन से ये बात कही जा सकती है कि वो गोली नहीं चलाएगी, और पुलिस भी मेरा ख्याल है कि गोली आम लोगों के ऊपर, आम पाकिस्तानियों के ऊपर नहीं चलाएगी। ये सिचुएशन होती है तो उस सूरत में क्या होगा? कुछ लोगों का ख्याल है कि कोई कू की शक्ल बन सकती है, कोई पॉपुलर कू हो सकता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हुकूमत फौरी तौर पे इस प्रेशर में आके इलेक्शन अनाउंस कर देगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान को उससे पहले ही मैनेज कर लिया जाएगा। ये खैर वक्त, आने वाला वक्त फैसला करेगा क्या होगा, लेकिन सरेदस्त इमरान खान के बारे में अपोजिशन का जो आज की गवर्नमेंट है उसका ख्याल ये था कि इनके जो मम्मी डैडी लोग हैं ये 4 जलसे करेंगे और थक जाएंगे और थक के बैठ जाएंगे। शदीद गर्मी में एक लंबा सफ़र जिस पे इमरान खान चल पड़े हैं, महीनों का सफ़र है, हम 6-7 महीने 8 महीने खींचेंगे और उतनी देर में ये थक के बैठ जाएंगे, और पैसे भी इसमें दरकार है, एक एनर्जी चाहिए, जलसे इतने कैसे करेंगे। तो मीनवाइल नून लीग जिसके पास अभी कोई बयानिया नज़र नहीं आ रहा, तो वो अपना को बयानिया गढ़ लेंगे जो गुड गवर्नेंस की सूरत में होगा कि देखें शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने मुल्क को सीधा कर दिया, लेकिन वो बदकिस्मती से बयानिया भी नहीं बन पा रहा। पहला बयानिया नून लीग का वैसे ही दफन हो चुका, दूसरा बयानिया बन नहीं पा रहा क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ गई है। आज पेट्रोलियम के साथ साथ बिजली, आटा, दाल, घी, इन सारी चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ गई, इवन यूटिलिटी स्टोर के ऊपर भी प्राइसेस बढ़ गई। तो ये प्राइसेस अगर इसी तरह बढ़ती रही, IMF का दबाव उसी तरह रहा जैसे इमरान खान गवर्नमेंट के ऊपर था, उससे भी ज़्यादा खौफनाक दबाव रहा, तो मौजूदा हुकूमत आगे चल के इलेक्शन में कुछ भी सेल करने की पोजीशन में नहीं होगी। साथ ही साथ गैस की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा भी ज़ेर गौर है। IMF ने इस हवाले से खासी सख्ती कर रखी है और डेडलाइन सुना दी है मिफ्ता इस्माइल को कि ये सारा कुछ करके रिपोर्ट करें। सऊदी अरब वापस पैसे मांग रहा है, यानी ख्याल ये था कि अगर पाकिस्तान की आवाम ये इम्पोर्टेड हुकूमत का जो मामला है इसको हजम भी कर ले तो उसके नतीजे में हो सकता है पाकिस्तान की कोई बेहतरी आ जाए, लेकिन पाकिस्तान की फाइनेंशियल बेहतरी आने की बजाय पाकिस्तान ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में गिरता चला जा रहा है। और जो अदारे, जिन अदारों के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो लेके आए थे इम्पोर्टेड हुकूमत को, वो लोग भी इस मामले में साइलेंट है और वो कोई माशी रास्ता मौजूदा हुकूमत को देने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट जो है, इस्टेब्लिशमेंट समझ रही है कि वो इतना बड़ा जो बैगेज है उसके नतीजे में जो फ़ौज के अंदर बेचैनी पैदा हो गई है उसको बैलेंस करने के लिए उनकी ज़्यादा तरजीह है इस गवर्नमेंट को बचाना कम और अपने अंदर जो बेचैनी है उसको कम करना उनके लिए तरजीह नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 1 बन चुका है। अब देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत अपने इस बोझ को लेकर चल सकती है। इमरान खान का जो टेम्पो है वो इस हुकूमत को कितने दिन चलने देता है, अदारे कब फैसला करते हैं इलेक्शन का। लेकिन मेरी इतला यह है कि अदारे सर जोड़कर इस पे बैठ गए और वो कुछ बैलेंस करने की पोजीशन में आ रहे हैं कि इमरान खान को बैलेंस किया जाए, इनका गुस्सा कम किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो माशी पई है वो भी चल सके और जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर उसको कुछ बेहतर किया जा सके। तो 20 मई से पहले एक कमीशन बनाने का फैसला सामने आ सकता है और आम इलेक्शन की डेट सामने आ सकती है जिसमें ये तय किया जाएगा कि फलां डेट्स को इलेक्शन होंगे। तो उस पर एक वाज़ेह रोड मैप सामने आ जाएगा, तो एक फेस सेविंग सामने आ जाएगी जिसके नतीजे में नए इलेक्शन की तरफ सारी पार्टियां चली जाएंगी। तो इससे एक सूरत हाल को कंट्रोल करने की एक प्लानिंग और एक कोशिश की जा रही है जिस पे आपकी और मेरी, हम सब की नज़र रहेगी इंशाल्लाह। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।